बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म की थी। आज पहले तो कुछ फार्मूले देख लें। कल मैंने 3 फार्मूले आपको लिखवाए थे, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। ना साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा it is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. And next one is sin of alpha minus beta. It is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. अब इनसे मुतालिक सिंपल क्वेश्चंस देख लें। ये दो फार्मूले For example, you are given sine of 360 degree minus theta. आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा इट इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे 360 है, बीटा की जगह पे थीटा है, तो इट इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 360 डिग्री साइन थीटा। Now sin 360 degree it is 0 into cos theta minus cos 360 degree it is equal to 1 into sin theta. So 0 into cos theta is 0 minus 1 into sin theta it is sin theta. The most simplified form it is minus sin theta. मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, इसे देख के फॉर्मूला जो दिमाग में आएगा ऊपर लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पे 180 है, बीटा की जगह पे थीटा है, इसका मतलब ये बन जाएगा साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। साइन 180 डिग्री it is equal to 0 into cos theta plus cos 180 degree it is equal to minus 1 into sin of theta. So 0 into cos theta it is 0 minus 1 into sin theta it is minus sin theta. The result is equal to minus sin theta. फर्ज करें क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस 90 डिग्री। अब कोसेक अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला नहीं है, मगर आप कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन
थीटा प्लस 90। अल्फा की जगह पे थीटा है, बीटा की जगह पे 90 है, इसका मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आप यूज कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा into cos beta plus cos alpha into sin beta। अल्फा की जगह पे थीटा था, बीटा की जगह पे 90। now it is equal to 1 divided by sin theta, it is equal to same sin theta multiplied by cos 90, it is equal to 0 plus cos theta as it is sin 90, it is equal to 1। it is equal to 1 divided by sin theta into 0 is 0, cos theta into 1 is cos theta। ये हो जाएगा 1 divided by cos theta, 1 divided by cos theta, it is equal to sec theta। इसका मतलब the most simplified form of cosec theta plus 90, it is equal to sec theta। अब दो मजीद फार्मूले देखें। Suppose that you are given cos of alpha plus beta, it is equal to cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta। The second one is cos of alpha minus beta, it is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha into sin beta। अल्फा प्लस बीटा के कॉस के ये दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन cos ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री। अब इसे देख के आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए cos अल्फा प्लस बीटा विच इज cos थीटा cos 90 माइनस sin थीटा sin 90। cos theta as it is cos 90, it is equal to 0 minus sin theta as it is sin 90, it is equal to 1। now it is equal to cos theta into 0 is 0 minus sin theta into 1, it is sin theta। so 0 minus sin theta, it is equal to minus sin theta। फर्ज करें क्वेश्चन है cos 180 प्लस थीटा माइनस थीटा। अब इसे देख के आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। it is equal to cos alpha into cos beta plus sin alpha
अल्फा की जगह 180 है, बीटा की जगह पे थीटा है, इनटू साइन थीटा. अब cos 180 it is equal to -1 into cos theta plus sin 180 it is equal to 0 into sin theta. अब ये हो गया 0, -1 into cos theta it is minus cos theta plus 0, ये बन जाएगा minus cos theta. The most simplified form of cos 180 minus theta it is equal to minus cos theta. अब अगर फर्ज करें आपको दे रखा है sec of theta minus 360 degree suppose. अब sec अल्फा माइनस बीटा का तो फॉर्मूला नहीं है, आप इसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय cos theta minus 360 degree and apply cos of alpha minus beta. It is equal to अल्फा की जगह पे अब थीटा है, बीटा की जगह पे 360, इट इज इक्वल टू cos थीटा इनटू cos ऑफ 360 डिग्री plus sin theta into sin 360 degree. Now it is equal to 1 divided by cos theta as it is, cos 360 it is equal to 1 plus sin theta as it is, sin 360 degree it is equal to 0. Now it is equal to 1 divided by cos theta into 1 is cos theta plus 0 into sin theta is 0. It is equal to 1 upon cos theta and it is equal to sec theta. It is the most simplified form of sec theta minus 360. तो ये दो फॉर्मूले sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा और दो और फॉर्मूले cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड, ये आपके सामने ही है. अब दो मजीद फॉर्मूले. Tangent of alpha plus beta it is equal to tangent alpha plus tangent beta whole divided by 1 minus tangent alpha into tangent beta, and tangent alpha minus beta is equal to tangent alpha minus tangent beta whole divided by 1 plus tangent alpha into tangent beta. तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के ये दो और फॉर्मूले. तो ये टोटल फॉर्मूले आपके पास 6 हो गए. साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लें. फर्स्ट करें, क्वेश्चन है टेंजेंट of suppose theta minus 180 degree. It is similar to tangent alpha plus कर देते हैं. tangent alpha plus beta. अल्फा की जगह पे क्या है थीटा, बीटा की जगह पे 180. तो वी यूज टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 180 डिग्री whole divided by
1 minus tangent alpha tangent beta, तो tangent theta into tangent 180 डिग्री, तो tangent theta ये तो आप वैसे ही देख लें, tangent की 180 डिग्री पे वैल्यू होती है 0 divided by 1 minus tangent theta as it is, tangent 180 it is 0. So tangent theta plus 0 it is equal to tangent theta divided by 1 minus 0. It is equal to tangent theta divided by 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब अगर फर्ज करें क्वेश्चन है टेंजेंट सपोज थीटा माइनस 360 डिग्री, इट इज सिमिलर टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो आपके दिमाग में दूसरा फार्मूला आना चाहिए। तो दूसरा फार्मूला टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, यानी टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट 360 डिग्री divided by 1 plus tangent theta into tangent 360 degree. Now tangent theta as it is minus tangent 360 it is 0 divided by 1 plus tangent theta as it is tangent 360 degree it is 0. So it becomes tangent theta divided by 1 plus 0. 1 plus 0 is 1. It is equal to tangent theta divided by 1. तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब अगर फर्ज करें क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, अब इसकी शक्ल तो साइन टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जैसी है, लेकिन टेंजेंट 90 की वैल्यू चूंकि इन्फिनिटी है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको इसे साइन अपॉन कॉस करके सॉल्व करना चाहिए। इट इज साइन थीटा प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, और यूज कर लें साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन 90 थीटा प्लस 90 इट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह पे 90 है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस 90 प्लस कॉस थीटा साइन 90 all divided by cos theta plus 90, it is same as cos alpha plus beta, which is equal to cos theta cos 90 minus sin theta sin 90। अब टेंजेंट sin थीटा तो ये तो वैसे ही लिख दें, cos 90 it is equal to 0 plus cos theta as it is sin 90 it is equal to 1 all divided by cos theta into cos 90 is 0 minus sin theta into sin 90 it is equal to 1। तो अब ये बन गया 0 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 0 माइनस sin थीटा, इट इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा। तो cos थीटा upon sin theta it is cot theta plus upon minus is minus. So the most simplified form is cot theta। अब अगर फर्ज करें मैं लिख दूं cot 180 डिग्री
प्लस थीटा। अब कॉट अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला नहीं है, कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप या तो इसे टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें, या फिर टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें, या फिर कॉस अपॉन साइन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा एंड यूज टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टेंजेंट 180 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 180 into tangent theta. Now it is equal to 1 divided by tangent 180, it is 0, plus tangent theta divided by 1 minus tangent 180 is 0 into tangent theta. तो अब ये हो जाएगा भाई 1 divided by tangent theta plus 0, it is tangent theta, divided by 1 minus 0. 1 minus 0 is 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा अपॉन 1, इट इज़ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, एंड 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इट इज़ कॉट थीटा। तो ये भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के मैंने 6 फॉर्मूले बताए और आपको 5-6-8 सवाल करा दिए। अब एक्सरसाइज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपको सवालात कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे। अब आइए टेबल जो 90 डिग्री का आप लोगों ने याद किया, बहुत मेहनत की। तो 360 डिग्री का टेबल डिग्री एंड रेडियंस, साइन थीटा की क्या वैल्यूज होती हैं, कॉस थीटा की क्या वैल्यूज होती हैं, टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यूज होती हैं। तो पहले तो आप देख लें जो हमने 90 0 से लेके 90 डिग्री का टेबल जो आपने बड़ी मेहनत से याद किया। 0 से 90 चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या थी पहले तो हम वो लिख देते। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती थी, 0 पे वैल्यू होती थी 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। रेडियंस में 0, π/6, π/4, π/3,
π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कंप्लीट हो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी? सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। (120°), 135°, 150°, 180°। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब 120°, it is 2π/3. 135°, it is 3π/4. 150°, it is 5π/6. 180°, it is π। अब मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये तो हो गई कॉमन वैल्यू। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर। हम इसे कहेंगे कि ये वैल्यूज रिपीट हो गई इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 एंड इट इज 0। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट। तो 210°, 225°, 240°, 270°। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 टिल 270। यहाँ पे वैल्यूज वही होंगी। क्वाड्रेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हुआ है, जहाँ पे खत्म हुआ है जो वैल्यूज हैं, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में सेम वैल्यूज होंगी। इसका मतलब ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के बराबर, ये वैल्यू इससे पहले वाली वैल्यू के बराबर, ये इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर। यानी वैल्यूज रिपीट हो गई इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 1/2, यहाँ वैल्यू होनी चाहिए 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ पे 1। इसके बाद आइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यूज, जहाँ पे ये वैल्यूज खत्म हुई हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कॉमन वैल्यू, यहाँ वैल्यू इसके बराबर होगी, यहाँ वैल्यू इसके बराबर होगी, यहाँ वैल्यू इसके बराबर होगी, यहाँ वैल्यू इसके बराबर होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट 1 इज द कॉमन वैल्यू, तो यहाँ होना चाहिए √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। ये एंगल क्या है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज 300, 315,
330, 360, 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया। रेडियंस में 7 पाई बाई 6, it is 5 pi by 4, it is 4 pi by 3, it is 3 pi by 2. At 300 इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो it is 5 pi by 3, it is 7 pi by 4, 11 pi by 6, and it is 2 pi radians. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पॉजिटिव ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज भी पॉजिटिव ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। इसलिए ये वैल्यूज जो सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की हैं और जो फोर्थ क्वाड्रेंट की हैं वो माइनस साइन के साथ लिखी जाए। अब आइए कॉस थीटा पे। कॉस थीटा 0 डिग्री पे होता है 1, 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज रिपीट हो गई, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इट इज 1। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ये वैल्यूज रिपीट हो गई तो √3/2, 1/√2, 1/2 एंड इट इज 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर ये वैल्यूज रिपीट हो गई तो 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इट इज 1। अब चूंकि कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यूज तो पॉजिटिव ठीक हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। इसलिए सेकंड और थर्ड की वैल्यूज माइनस के साथ लिखी जाएंगी, 0 के साथ माइनस नहीं लिखा जाता। अब आइए टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा 0 से 90 की वैल्यूज तो आपको याद है। एट 0 इट इज 0, एट 30 इट इज इक्वल टू 1/√3, at 45 it is 1, at 60 it is √3, and at 90 it is infinity, undefined। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज रिपीट हो गई इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0। सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, थर्ड में फिर वैल्यूज रिपीट हो गई, 1/√3, 1√3, इंफिनिटी। थर्ड भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ में फिर वैल्यूज रिपीट हो गई, √3, 1, 1/√3 एंड इट इज 1, इट इज 0। अब टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज प्लस के साथ लिखनी चाहिए। लेकिन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज भी और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज भी इनके साथ माइनस लिखना चाहिए। ये है भाई 0 से 360 डिग्री का टेबल। ये याद कर लेंगे फ़ायदा होगा, याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं और
हर चीज़ कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी मुनासिब शायद नहीं। ये टेबल आपके सामने बनाया है, बार बार इस्तेमाल होगा, तो याद कर लें तो फ़ायदा है, याद नहीं करेंगे तो आप ही को नुकसान है। आगे सारी ज़िंदगी ये काम आता रहेगा। ये ना सिर्फ आपको ये टेबल बनवा दिया है, बल्कि समझा भी दिया है वैल्यूज़ किस तरह से रिपीट होती हैं, कैसे होती हैं ये वैल्यूज़, याद कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक वो सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के क्वेश्चन हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला फार्मूले थोड़े से और हो जाएंगे और ये वाले फार्मूले भी मॉडिफाई हो जाएंगे। काम को पेंडिंग में मत डालिए। तो अब किसी बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ था, वो दोबारा हैंड रेज करे, कौन सा बच्चा था? अरे भाई, क्लास के शुरू में किसी बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ था, तो वो कौन से स्टूडेंट था? वो दोबारा से हैंड रेज कर ले। कोई भी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।